Hello, dear students. Welcome to the class today. How are you all doing? I hope you all are doing fine. Um, as you all know, we are carrying on with this chapter 6 History, Towns, Traders, and Craftsperson. हमने टाउन्स के बारे में पढ़ा. सम ऑफ द ग्रेटेस्ट टाउन्स ऑफ इंडिया, सूरत, हम्पी, मसूलीपट्टनम, इन सारे टाउन्स के बारे में पढ़ा. देन we have also understood about the traders who were there in these towns. In towns में the traders who were working, the traders who were employed or who were doing business, we came to know about them also. And then we talked about the craftsperson. Craftsperson, the people who are making beautiful art and architecture, beautiful structures, beautiful materials. All these are something that was very unique and exclusively found in India. Lot of found in the other places. Now children, ये picture बहुत ही beautiful है. This is one of the most beautiful pictures of this chapter. I ended this the last video here only, where we have seen this picture which is showing the exclusive buildings of Mumbai. 17th century की building है, but look at the grandeur. Grandeur means इसकी खूबसूरती देखिए आप. ठीक है, the great structure that is here. Got it? This great structure and its outcome had a different impact, a very encouraging impact on the traders, the people. ये देखो कितनी अच्छा, इस तरह की पिक्चर्स देख के, of course these pictures have been made by the people who existed in those times. उस समय के जो लोग हैं, उस समय के जो पेंटर्स हैं, उन्होंने ही इस तरह का पेंटिंग बनाई है. तो जब उस समय के लोगों ने ऐसी पेंटिंग बनाई है, देन वी क्लियरली अंडरस्टैंड, वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि द पेंटिंग्स दैट हैव बीन मेड, क्या क्या चीज़ें उस समय हुआ करती थी. वॉट ऑल थिंग्स यूज टू हैपन एट दैट टाइम. ये देखो, पहला तो ये देखो, पता है टाइम्स में जिस तरह से आजकल हम लोगों के यहाँ पे रिक्शा मिलता है ना, वी गेट द ऑटो रिक्शा, एंड सम प्लेसेस तो हाथ वाली रिक्शा भी होती है, हाथ गाड़ी होती है. ये दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन टुडेज टाइम. उस समय क्या होता था, इफ़ पीपल हैव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, सम सेठ जी इज देयर. ये देखो, अब पैसे वाले लोग जैसे दिखते थे, एंड देन दे यूज टू हायर पालकी. गॉट इट? These are called as the palanquins. क्या कहते थे? These were the palanquins. And these palanquins were used to from one place to the other place. Of course, it was expensive. काफ़ी पैसे लगते थे, but then there were people who can afford it. हाँ, and ये देखो, इनको कहा जाता है, these were the people who used to take who used to carry the palanquin. ये पालकी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करते थे, जैसे रिक्शा पुलर्स होते हैं. the way we have the rickshaw pullers and the other categories. Got it? तो this is there. Now the palanquin bearers who are there, the people who are carrying on with the palanquin, ये देखो structure. I just wanted to show you this. आप ये खिड़कियां देख रहे हो, आप ये लुक एट दिस, आई मीन डोर शेप्ड विंडोज, वेरी यूनिक. एंड यू नो दीज विंडोज वेयर अमेजिंग. पहले के ज़माने में एसी और ये तो हुआ नहीं करते थे. देयर वॉज नो एसी, देयर वॉज नो कूलर. तो गर्मी के टाइम में अगर ये विंडोज़ को खोल दिया जाता था तो खूब हवा आती थी. एंड दैट टाइम, उस समय गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं चलती थी, तो द एयर वॉज वेरी फ्रेश.
थोड़ी देर भी मतलब अगर इट्स टू हॉट और इन खिड़कियों को खोल के इसके सामने अगर आधे घंटे के लिए आदमी लेट गया तो गर्मी छू मंतर हो जानी थी. Yes, that was the common feature. That was the important feature of these windows. Got it, children? तो एक तो the towns which were हमने बताया था that the European traders they used to give advance to the Indian weavers and the Indian craftsperson. एडवांस देने के बाद ये लोगों को फंसा लेते थे. And the weavers had no longer the liberty of selling their cloth. आराम आराम से वो अपने क्लोथ सेल नहीं कर सकते थे. And they could not weave their own patterns. उनको मतलब बिकॉज एडवांस ले लिया है ना, जहां भी पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, once if the money is involved then the people are trapped. और यही हो रहा था वीवर्स के साथ. एंड पता है जबरदस्ती आके इनको पैसे दे देते थे. द पीपल, द ब्रिटिशर्स, उन्होंने दे यूज टू कीप somebody called, when you will go in the higher classes 10th class में there is a complete chapter which talks about the weavers and the fellow people who were there, जो कि जबरदस्ती उनसे काम कराते थे. They were called as the Gomasthas. Got it? So weavers cannot sell their own cloth. They cannot weave their own pattern. They had to reproduce the designs. 18th century में क्या हुआ? Bombay, Calcutta and Madras was growing. And आज ये you know these are the very happening cities in today's time. आजकल तो मुंबई, कोलकाता एंड मद्रास जो हैं, इनके जैसी सिटीज होना बड़ा मुश्किल. बिग सिटीज, करोड़ों लोग रहते हैं, लाखों नहीं कह सकते हैं, करोड़ में होते हैं यहाँ की पॉपुलेशन. यस. तो एंड क्राफ्ट्स पीपल, कॉमर्स, दिस ऑल अंडरवेंट मेजर चेंजेस. जैसे कि मर्चेंट्स वेर देयर, आर्टिशियंस वेर देयर. तो दे ऑल मूव्ड इनटू द ब्लैक टाउन्स. ब्लैक टाउन्स, यू नो, ब्रिटिशर्स वेर द वाइट पीपल, बहुत ही गोरे होते थे, तो दे हार्डली यूज टू मिक्स अप with the blacks. White town was separate and black town was separate. Got it? तो the blacks were the native traders, मतलब जो मुंबई के ही रहने वाले हैं या जो कोलकाता के ही रहने वाले. नेटिव मीन्स अगर किसी जगह पे somebody is staying for a very long time, कोई अगर उसी जगह पे काफ़ी दिन से रह रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, then these category of people are called as natives. Okay? उसके बाद Fort St. George was built in Madras and Fort St. William was built in Kolkata. These were built जहाँ पे कि ब्रिटिशर्स ऐश की जिंदगी बिताते थे. ओके. तो blacks were there, the native traders were there, crafts persons were there. All of them were here while the white rulers, they occupied the superior residences. हाँ. तो क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स 18th सेंचुरी में किस तरह से था, लोगों की क्या हालत थी. द पीपल, the story of the crafts people and the commerce in the 18th century, it will be all dealt in the next year. Got it? ये देखेंगे. अभी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, हर एक चैप्टर में ये होता है कि थोड़ा बहुत हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, फिर थोड़ा बहुत हम यूरोप के बारे में. फर्स्ट वी स्टडी अ लिटिल बिट अबाउट इंडिया, देन वी स्टडी अबाउट द यूरोपियन कंट्रीज. गॉट इट? 15th सेंचुरी में व्हाट हैपेंड, द यूरोपियन सेलर्स हु वर देयर, मतलब जो जहाज चलाते हैं, जो जहाज से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, पानी के जहाज से, that is running on the let us find out new sea routes. पता करते हैं कहाँ कहाँ जाया जा सकता है. ओके. एंड they thought कि they need to find out new ways, क्योंकि India was a place which was known all over the world. दूर दूर से लोग इंडिया में आना चाहते थे और इंडिया में सेटल होना चाहते थे.
तो अभी इसी में देर इज़ वन न्यू स्टोरी. हम मुझे कहानियाँ सुनाना बहुत अच्छा लगता है. आई लव टेलिंग स्टोरीज. ओके, सो हियर वी हैव द स्टोरी ऑफ वास्को डी गामा. Vasco da Gama, he was a Portuguese sailor. Portugal is a very beautiful country in Europe, and he came to the African coast. Africa, ठीक है. अभी देखो मैं आपको दिखाती हूँ. This is a world map. मेरे को बनाना नहीं आता. Here is India. Here is Africa, and here is Europe. तो क्या हुआ? Portugal is here. यहाँ से चल के Vasco da Gama came to African coast. This is Africa, okay, and this is India. And he wanted to come to India. इन्होंने भी सुना हुआ था कि इंडिया एक जगह है which is सोने की चिड़िया. And Cape of Good Hope के through he crossed over the Indian Ocean. Okay, and first journey, पहला जो इनका जर्नी था, उसमें 1 साल से ज़्यादा लग गया. ही रीच्ड कैलिकट. सबसे पहले ही रीच्ड कैलिकट इन 1498. जीके चिल्ड्रन, फ्रॉम जीके पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज रिमेंबर, व्हेन डिड वास्को डी गामा रीच कैलिकट? फॉर द फर्स्ट टाइम ही रीच्ड कैलिकट. कैलिकट इज इन साउथ इंडिया. फर्स्ट जर्नी टुक मोर देन 1 साल पूरा लग गया. कैलिकट ये पहुंचे 1498 में. उसके बाद ही रिटर्न टू लिस्बन. विच प्लेस? लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ पोर्टुगल. पोर्टुगल का कैपिटल, जैसे इंडिया का कैपिटल इज दिल्ली. ओके, इन द सेम वे लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ पोर्टुगल. नाउ व्हाट हैपेंड? उसके बाद नेक्स्ट ईयर अगेन ही लॉस्ट 2 ऑफ हिज 4 शिप्स. इनके जो जहाज थे ना, उसमें से 2 शिप कहीं इनको ये he has lost it, and 170 men at the start of the journey. 2 शिप कहीं डूब गए होंगे, कहीं टूट गए होंगे, ये चीज़ इसमें नहीं दिया हुआ है. 170 लोगों की जान चली गई. ओनली 54 पीपल सर्वाइव्ड. मतलब जो जिंदा बचे, ओनली 54 पीपल वेयर अलाइव. एंड एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल समझ में नहीं आया. बाद में ही अंडरस्टूड दैट इंडिया से ट्रेड करना इज वेरी बेनिफिशियल. लॉट ऑफ मनी कैन बी अर्नड. और एक बारी वास्को डी गामा, पहले क्या था, यूरोपियंस को पता ही नहीं था इंडिया कैसे आना है. दे डिड नॉट नो द रूट टू कम टू इंडिया. रास्ता नहीं पता था. और रास्ता किसने बताया? वास्को डी गामा. एक बारी उन्होंने रूट बता दिया. देन द अदर पीपल ऑल्सो फॉलोड हिम. यहाँ पे ब्रिटिश है, डच है एंड फ्रेंच है. सबको इंडिया आना था ना. एवरीबडी वंस अपॉन ए टाइम वांटेड टू कम टू इंडिया. एवरीबडीज डिजायर वाज दैट. गॉट इट? तो सी रूट्स वाज वेयर देयर. दे वर सर्चिंग फॉर सी रूट्स. अनएक्सपेक्टेड फॉल आउट वाज देयर. एंड सबको ऐसा लगता था कि अर्थ राउंड है. जब अर्थ राउंड है तो कहीं पे तो कोई जगह आएगी जहां पे हम गिर जाएंगे. Nobody knew about the gravitational force. तो अर्थ को राउंड है ये सोच के क्रिस्टोफर कोलंबस, जैसे वास्को डी गामा वॉज फ्रॉम पोर्टुगल, इन द सेम वे कोलंबस वॉज फ्रॉम इटली. तो ही थॉट कि अटलांटिक ओशन पे जाते हुए अपनी शिप लेके चलते हैं. फ्रॉम अटलांटिक ओशन व्हाट विल हैपन? दे वांटेड टू फाइंड आउट अ रूट टू इंडिया. एंड वेयर डिड ही लैंड? ही लैंडेड इन वेस्ट इंडीज. वेस्ट इंडीज कहाँ पे है? यस, पता लगाना है. ओके, एंड व्हेन ही लैंडेड देयर, कोलंबस जब वहां उतरे ना, उन्होंने कहा वहां इंडिया आ गए, इंडिया आ गए, वी हैव कम टू इंडिया, वी हैव कम टू इंडिया. ऑन दैट प्रीटेक्स्ट, इंडीज, he said we have reached Indies, and this is the West Indies. ईस्ट के तरफ दूसरा इंडिया है, ये दूसरा इंडिया है. एंड ही वॉज फॉलोड बाय द सेलर्स एंड ही from Spain and Portugal. Large areas of Central and South America was occupied. उनको पता ही नहीं चला कि वो इंडिया नहीं पहुंच पाए थे. इंडिया तो वास्को डी गामा पहुंच गए थे. कोलंबस तो रास्ता भूल के कहीं और पहुंच गए थे. ओके, लेकिन कोलंबस इज वन पर्सन हु हैज फाउंडेड अमेरिका. पहले अमेरिका वॉज नॉट देयर ऑन द मैप ऑफ इंडिया, ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड.
He is the person who found out such a big continent. Okay, and Central America, they occupied the large parts of Central and South America, and they destroyed the earlier settlements. जहाँ भी जाते थे इनको हमेशा इनके दिमाग में होता था कि they have to establish their own culture, और पुराने जितने भी कल्चर्स थे उसको वो ख़त्म कर देते थे. Got it? तो here we complete the chapter. Let us discuss the सेशन कि सपोज सूरत से वेस्ट एशिया जाने के लिए आप स्टार्ट करते हो जर्नी. 17th सेंचुरी की बात है. तो आपको क्या क्या सामान अपने साथ लेके जाना पड़ेगा? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इजंट इट चिल्ड्रन? यस, सो वी विल बी डेफिनेटली डिस्कसिंग इट इन द ऑनलाइन क्लास. ओके चिल्ड्रन, तो ये है. चलो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर्स. Okay children, so we have completed the chapter towns, traders and craftsperson. Got it? Chapter complete हो गया है. Every time I discuss the question and answers, very simple question answers are given here. आपको इनको करना है. You will be doing these question answers. आराम आराम से हो जाएगा, ऐसा कुछ complicated नहीं है. So the first questions are of the fill in the blanks. राजराजेश्वर टेम्पल. ओके, राजराजेश्वर टेम्पल कहाँ पे बना था? इट वॉज बिल्ट इन थंजावुर. ओके. अजमेर इज एसोसिएटेड विद द सूफी सेंट. किस सूफी सेंट के साथ अजमेर इज एसोसिएटेड? यस, मोइनुद्दीन चिश्ती. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. नाउ चिल्ड्रन, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. यूनिट टेस्ट 1 में तो आपने अपनी चीज़ें अपने तरीके से कर ली, लेकिन अब हाफ ईयरली में इट वोंट बी एक्सेप्टेड एट ऑल. गॉट इट? व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल? आप बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो. अब जैसे सिंपल आई टोल्ड यू, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. आधे से ज़्यादा बच्चे इसकी स्पेलिंग मिस्टेक इतनी ज़्यादा करेंगे ना कि फिर कुछ बोलने के लायक नहीं है. So please my dear children, don't do that. Okay, so Ajmer, it is associated with Khwaja Moinuddin Chishti. Hampi was the capital of the, yes, of course, Vijayanagar Empire, and the Dutch established a settlement at Masulipatam. Masulipatam in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh में Dutch has established the settlement. अभी ट्रू एंड फॉल्स देख लो. पहला क्या है? वी नो द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ राजराजेश्वर टेम्पल फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन. राजराजेश्वर टेम्पल किसने बनाया, ये हमको कैसे पता चलता है? वी नो थ्रू एन इंस्क्रिप्शन. एक जगह पे उनका नाम, मतलब इट इज एनग्रेव्ड देयर. हाँ, नाम को पत्थर पे ही लिख दिया गया है. इट इज रिटन ऑन द स्टोन. तो थ्रू दैट वी अंडरस्टैंड दैट द आर्किटेक्चर एट द राजराजेश्वर टेम्पल फ्रॉम दैट इंस्क्रिप्शन. इट इज ट्रू. मर्चेंट्स प्रेफर टू ट्रैवल इंडिविजुअली रादर देन इट कैरावंस. मर्चेंट्स जो है वो अकेले अकेले ट्रैवल करते थे, कैरावंस के साथ नहीं जाते थे. ट्रू एंड फॉल्स? ऑफ कोर्स इट इज फॉल्स. दे ऑलवेज लाइक्ड टू ट्रैवल इन ग्रुप्स. And Kabul, it was a major center for trade in elephants. Elephants में Kabul was a major trading center, and it is false. Kabul से नहीं, Arab से घोड़े आते थे. Arabian horses were very famous. Surat was an important trading port on the Bay of Bengal. बिल्कुल भी नहीं. Surat was an important trading port on the इंडियन ओशन, गल्फ ऑफ कच्छ, अरेबियन सी के पास. ओके. वाटर सप्लाई सिटी ऑफ थंजावुर में कैसे आता था? हाउ वॉज द वाटर सप्लाई कमिंग? नो, यहाँ पे दिस आंसर इज रॉन्ग. ओके, वेल्स एंड टैंक से इट यूज टू कम, लेकिन यहाँ पे
You have to also mention about the aqueducts. Of course, it was in the Hampi. लेकिन aqueduct was the way of bringing water from the far off places and far off rivers. बहुत दूर दूर से सिटी में पानी लाने का यही एक तरीका था. Okay, children. Who lived in the black towns? मद्रास में black towns में कौन रहते थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स हैव सेग्रीगेटेड. एक एरिया को उन्होंने व्हाइट टाउन बना दिया था, इन अनदर एरिया दे हैव मेड द ब्लैक टाउन. तो मर्चेंट्स, आर्टिशंस सच एज वीवर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्स पर्सन, ऑल ऑफ देम लिव्ड इन ब्लैक टाउन्स. मतलब जो भी इंडियन है, हर एक इंडियन को ब्रिटिशर्स कहते थे ये तो ब्लैक है, दे आर द ब्लैक पीपल, हमारे साथ तो रहने के लायक नहीं है, बिकॉज दे ऑलवेज हैड द फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी. और इसलिए वो कभी भी इंडिया के होके नहीं रह पाए. they can never get mixed with the Indians. They were never happy with the Indian traders and the craftsperson. सामान उनको इंडियन चाहिए था. ठीक है, they needed all the goods that was manufactured in India. लेकिन merchants, artisans like weavers, traders, craftsperson, they all lived in black towns. Okay, like in cities such as Madras. Okay, next question क्या है? Why do you think that the towns grew around the temples? Lot of discussions we have done on this. इसके ऊपर हमने काफी सारे discussions किए, isn't it? Temple के आसपास में the towns have developed because temples were the major administrative center. सारे शहर का काम जो है वो टेम्पल्स में ही होता था. All the work used to happen in temple. And क्राफ्ट प्रोडक्शन, कपड़े बनते थे, मालाएं बनती थी, भगवान जी का प्रसाद मतलब खाने का सामान बनता था. एवरीथिंग, ऑल द थिंग्स दैट वी थिंक अबाउट एनी सिटी, जो एक्टिविटीज होती हैं, ऑल ऑफ दिस वाज कैरिड ऑन इन एंड अराउंड टेम्पल. टेम्पल का जो पैसा आता था, जो चढ़ावा आता था, द पीपल हु यूज टू ऑफर मनी इन द टेम्पल्स, ये पैसा कहाँ यूज होता था? ऑल दिस वॉज यूज टू फाइनेंस बैंकिंग एंड ट्रेड बाय द टेम्पल अथॉरिटीज. एंड जिसको भी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, दे कैन ईजिली take money or take loan from the easily can take loan from the religious place, that is temple. जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, the people who are coming to do the puja, the pilgrims who are coming to the temple, large number of priests were there, artisans were there, workers were there. तो all these people पहले तो टेम्पल में दर्शन करने आते थे, उसके बाद ग्रेजुअली एंड स्लोली जब उन्होंने देखा टेम्पल से, द पीपल वेर वेरी अटैच टू द टेम्पल, दे स्टार्टेड सेटलिंग इन एंड अराउंड टेम्पल. ओके, एंड दिस इज हाउ द टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल. मतलब पहले के किंग्स, इनिशियली द किंग्स वेर वेरी रिलीजियस काइंड ऑफ पीपल. एक टेम्पल बना दिया उन्होंने और उनको पता था टाउन ऑटोमेटिकली बन जाएगा. The people who were working in the temple, they started making their houses near the temple, and इस तरह से the temple grew to be the main economic center. Craftsperson कितने ज़रूरी थे for buildings and maintenance of temple? Of course, craftsperson, the people who were engaged in different kind of crafts. Crafts में देखो एक ही तरीके के लोग नहीं होते हैं. ये देखो यहाँ एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. देयर वेर द गोल्ड स्मिथ, देयर वेर द ब्रॉन्ज स्मिथ. मतलब लोहार, सोनार, तांबे का सामान बनाने वाले, पीतल का सामान बनाने वाले, दीज ऑल आर कॉल्ड एज द क्राफ्ट पीपल. ठीक है, मोची तक चमड़े का जो काम कर रहे हैं, लोहार, मेसन, कारपेंटर, एवरीबडी वॉज नीडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल. टेम्पल को बनाने के लिए इन सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी. एंड उसके बाद टेम्पल के डेकोरेशन में भी इनकी ज़रूरत है. खाली बनाने के लिए नहीं, टेम्पल के डेकोरेशन के लिए भी
these people were needed क्योंकि they used to make in copper, in silver, they used to make idols, मूर्तियां बनाते थे, designing the roof. All these things were being done by the crafts people. So crafts people hold a very important place in the construction and in the making of the temples. जो बहुत पैसे वाले लोग थे, the prosperous communities, a lot of money, the people who had, they made donations to the temples. काफी पैसे donate करते थे. And then this money was used for the welfare work. वेलफेयर वर्क, लोगों की भलाई के लिए खाने का इंतजाम किया जाता था, रहने का इंतजाम किया जाता था एंड ऑल दैट. आसपास की जगह, आई मीन व्हाई डिड द पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स विजिट सूरत? सूरत क्यों आते थे? ओके, बिकॉज पहले तो ये कि सूरत वॉज अ मेजर ट्रेडिंग सेंटर. ऑल द मेजर ट्रेड यूज टू हैपन इन सूरत. ओके, and it was the gateway of for trade, पूरे all kind of trade that was happening, and it was also the gateway to Mecca. Mecca, Medina, I mean the holy place of the Muslims. Every Muslim in their lifetime, once they want to go to Mecca and Medina. Okay, so Portuguese, Dutch, English, they all these people had their factories, offices थे इनके यहाँ पे सूरत में, and warehouses go down, जहाँ पे सामान आके जैसे उनके देश से सामान आया, अनलोड हुआ, लोड हुआ, तो वो तब तक सारा सामान कहाँ रखा रहेगा. And lot of things were very famous from Surat, especially the cotton cloth of Surat was very famous. तो ये 1-2 मीटर तो कपड़ा होता नहीं था, थान होती थी, बहुत ज़्यादा कपड़ा होता था, कहाँ रखेंगे? तो दे यूज टू कीप इन दीज वेयर हाउसेस. ये जो गोडाउन्स था, यहाँ पे ये सारा सामान रखा जाता था. देन देयर वेयर मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स एंड सबसे ज़्यादा, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट जरी का काम, स्टाइल ऑफ सूरत वेयर फेमस फॉर देयर लेस बॉर्डर्स, जरी, इन सब चीज़ों के लिए फेमस था. मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स वेयर देयर एंड इन्यूमरेबल प्लेजर पार्क्स वेयर ऑल्सो देयर. जो लोग यहाँ आ रहे हैं, बिजनेस के लिए ही आ रहे हैं, काम काज करेंगे, शाम को थक हार के कहाँ पे जाके रिलैक्स करेंगे? वेयर विल दे गो एंड सिट एंड रिलैक्स? तो उसके लिए देयर वेयर पार्क्स. मीन्स रूलर्स हैव मेड प्रॉपर अरेंजमेंट्स. गॉट इट? तो दिस वॉज देयर. क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है, कैलकाटा में जो क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा था, इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम थंजावुर. हाउ? ओके, कैलकाटा में द मैन्युफैक्चरिंग दैट वॉज हैपनिंग, इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम थंजावुर बिकॉज द पीपल वेयर इंडिपेंडेंट. किसी के अंडर में वो काम नहीं करते थे, अपने मन का काम करते थे. जितना काम मिल रहा है, जितना समझ में आ रहा है, उतना ही काम करते थे. लेकिन कैलकाटा में क्या हुआ? दे फेल इनटू द हैंड्स ऑफ यूरोपियंस. यूरोपियंस ने इनके ऊपर, कैलकाटा वालों के ऊपर कब्जा कर लिया. थंजावुर में क्राफ्ट्स वेयर डेवलप्ड ऑन इंटरेस्ट. हाँ, मतलब कि इतना अगर प्रोडक्शन कर देंगे तो इतना पैसा मिलेगा एंड ऑल दैट. And they were creative. अपने हिसाब से they used to make in Thanjavur beautiful designs. लेकिन the crafts person, मतलब लेकिन कैलकाटा के जो कारीगर थे, उनको इतनी फ्रीडम नहीं मिली हुई थी. ओके चिल्ड्रन? देन they were having liberty. देखो फ्रीडम था. सिंपल में समझो, the crafts people and the people who were busy with the weaving work, who were there in Kolkata, they were not free, and the people in Thanjavur were free. अपने मन का काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं. मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूं. ओके, और जिसको मन चाहेगा उसी को बेचेंगे. They were free to sell their goods to anybody, whether it's a Britisher or a French or a Portuguese. लेकिन it was not such for Bengal people. कैलकाटा में तो all the weavers have to follow the orders of the British.
अपने मन का डिजाइन नहीं बना सकते थे, अपने मन का कपड़ा नहीं यूज कर सकते थे, डाइंग, वीविंग, एवरीथिंग was done according to. So this way, when you describe the difference between the production in Thanjavur and production in Kolkata, उसको थोड़ा difference mode में लिखना and please write it in columns. On the side, please mention Thanjavur and on the other side mention Kolkata. Kolkata उस समय that time it was called as Calcutta. Got it? So here we come to the end of the chapter, children. Next class में we will be starting the new chapter. Till then, thank you so much and all the best to you.